So, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is on cerebral cortex. Basically, this is the first lecture of cerebral cortex. We will try to finish that topic in two lectures. Next lecture will be most probably the last lecture of cerebral cortex. Now, basically, human brain, the topmost portion of human brain is called as cerebrum. Cerebrum have basically outer portion and inner deep nucleus. Like basal nuclei were also deep cerebral nuclei. Outer portion, as you are seeing in this diagram, has lobes, frontal, temporal, parietal, and occipital. This outer portion, outermost portion of cerebrum, this is called as its cortex or cerebral cortex. Okay. So cerebral cortex is the outer layer of the neural tissue of the cerebrum of the brain in the humans. Now this is divided into two half equals. Both cerebral called as each cerebral hemisphere. Both cerebral hemisphere are separated by a deep vertical fissure. The separation is complete anteriorly and posteriorly, means both are separated from one another, but in the middle, in a portion called corpus callosum, these hemispheres are attached with each other. Corpus callosum is the broad band of commissural fiber connecting the two hemispheres. Clear? What about the surface? The surface of the cerebral cortex have, when you will see in this diagram, see it has elevations and depression. Elevation is called as gyrus. Depression is called as sulcus. Clear? So sulcus is the depression. Gyrus is the elevation. Their plural will be called as sulci and gyri. These are elevation and depression on the surface of cerebral cortex. Now, how many layers of at the histological level, if we check their layers as we check the layers of the cortex of cerebellum, cerebellum जो नीचे वाला पोर्शन था ब्रेन स्टेम के साथ था, उसके जब हमने लेयर्स देखी थी वो हमें मिली थी 3 लेयर्स. मॉलिक्यूलर लेयर थी, उसमें परकेंजी सेल की लेयर थी, ग्रेनुलर लेयर थी. आपको याद होगा, प्रीवियस रिकॉल योर मेमोरी. अब इसकी 6 लेयर हैं. जो भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, फ्रंटल लोब हो, टेम्पोरल हो, पैराइटल हो, ऑक्सीपिटल हो, अगर उसके कॉर्टेक्स को देखेंगे हमें 6 लेयर्स नजर आएंगी. इस तरह देखें, बाहर से इनर की तरफ ये बेसिकली सेल्स हैं, उनकी एग्रीगेशन है, खास सेल है, इस वजह से उनको लेयर कह दिया. ठीक. अब दीज आर मॉलिक्यूलर, एक्सटर्नल ग्रेनुलर, small pyramidal cell, internal granular, large pyramidal cell, last fusiform or polymorphic cell. क्लियर? यही है जो वहां बताया, सेम मॉलिक्यूलर, एक्सटर्नल ग्रेनुलर, फिर pyramidal, external, internal granular जो है. तो इंटरनल pyramidal यहाँ लिखना चाहिए था, इसको 5th पे ना उसने मेंशन नहीं किया. दिस इज इंटरनल pyramidal या large pyramidal cell. क्लियर? लास्ट इज multiform layer or we can say it fusiform or polymorphic layer. लोब्स पहली डायग्राम में भी थी. फ्रंट की तरफ जो है फ्रंटल लोब होता है, सबसे बैक की तरफ ऑक्सीपिटल लोब होता है, सबसे साइड के अंदर टेम्पोरल है, थोड़ा ऊपर करके फ्रंटल और ऑक्सीपिटल के बीच में ये पैराइटल लोब है. तो ये लोब्स हैं. अब इन लोब्स को एक साइंटिस्ट था, दैट वाज कॉल्ड, नेम वाज ब्रॉडमैन, उसने क्लासिफाई किया. इस हर लोब के अंदर एक खास एरिया उसने क्लासिफाई किया और बताया कि इस एरिया का ये काम है. उस काम के हिसाब से उसने वो एरिया डिस्कवर करता कि उसको एक नंबर दे दिया उसने, 1 2 3 इस तरह करके. तो उन एरिया वाइज इसकी क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, उसको दैट इज कॉल्ड ब्रॉडमैन्स क्लासिफिकेशन. क्लियर? तो हम जो भी एरिया पढ़ेंगे उसके अंदर जो नंबर आएगा वो ब्रॉडमैन की क्लासिफिकेशन वाइज उस जगह का नाम है. नाउ फ्रंटल लोब को करते हैं. फ्रंटल लोब के 2 पोर्शन इसने बताए, कंसिस्ट ऑफ प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स पोस्टीरियरली, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंटीरियरली. यानी फ्रंटल लोब को फिर डिवाइड किया है, फ्रंट पोर्शन, बैक पोर्शन. फ्रंट को हमने कहा प्री फ्रंटल, बैक को कहा प्री सेंट्रल. क्लियर? अब बैक वाले का नाम है प्री सेंट्रल. वो उसके अंदर कौन कौन से एरिया है? एक है प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया. ये एरियाज प्रेजेंट हैं बैक पोर्शन ऑफ फ्रंटल लोब में. अब फ्रंटल लोब की अगर एनाटॉमी हम देखें, ये देखें फ्रंटल लोब के दोनों पोर्शन इसने दिखाए. ये है प्री फ्रंटल, पीछे वाला है
that was called as pre-central, यानी सेंटर की तरफ है इसलिए pre-central, ये फ्रंट की तरफ है pre-central। अभी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर प्राइमरी मोटर एरिया देखें 4, प्री मोटर एरिया 6 और 8, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया ये भी 6 में इंक्लूड होता है, ये ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन। अब प्राइमरी मोटर एरिया किसको कहते हैं? जैसे प्राइमरी का मतलब प्राइम फंक्शन करने वाला, इनिशिएटर, तो ये इनिशिएटर है मोटर फंक्शन का। जो भी मूवमेंट है हाथ की, पाँव की, जो है हरकत है, वो सब प्राइमरी मोटर एरिया स्टार्ट करवाएगा। एरिया 4 एंड 4S दूसरे को का है वो प्रेजेंट होते हैं, कंसर्न विद इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट एंड स्पीच। तो आप बताएंगे प्राइमरी मोटर एरिया कहाँ होता है? प्री सेंट्रल गायरस, जिस गायरस में होता है उसका नाम है प्री सेंट्रल गायरस। ये फ्रंटल लोब का पार्ट है, फ्रंटल लोब के बैक पोर्शन का पार्ट। इसका काम क्या है? वॉलंटरी मूवमेंट को स्टार्ट करवाना। और क्योंकि टंग की मूवमेंट भी वॉलंटरी है, स्केलेटल है, इसलिए स्पीच भी इसका रोल है। इसके साथ ही एक एरिया होता है प्री मोटर एरिया, वो इसका हेल्पर है, आप समझे क्या है? इसका हेल्पर है प्राइमरी का। Premotor area include area number 6, 8, 44, 45. The premotor area is anterior to the primary motor area in precentral cortex. The premotor area is concerned with control of postural movement by sending motor signal to axial muscle. अब ये एक तो उसकी हेल्प करता है, दूसरे नंबर पे इसका खास अलग से काम ये है कि जो पोस्चर के मेंटेन करने के मसल हैं, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम को टाइट रखते हैं और गिरने नहीं देते किसी भी इंडिविजुअल को, उनको जो है कंट्रोल करता है प्री मोटर एरिया। ठीक है। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया is situated in medial surface of frontal lobe, rostral मतलब नीचे, to primary motor area, primary motor area के नीचे होता है। It is suggested that it is concerned with coordinated skilled movement. It also assists primary motor area. प्राइमरी मोटर एरिया को असिस्ट करता है कि स्किल मूवमेंट करवाए और भी हेल्पर है उसका। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया ये भी फ्रंटल लोब के बैक पोर्शन में होता है। अब फ्रंटल लोब का जो फ्रंट पोर्शन है, जिसको हमने कहा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हम इसको ब्रेन का कह सकते हैं। आपके लोग के जो ब्रेन है, यानी ब्रेन हैव थिंकिंग पावर, ब्रेन हैव डिसीजन पावर, ब्रेन हैव पावर टू स्टोर इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज मेमोरी। क्लियर? वो काम इसका है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब इसके एरिया नंबर क्या है? नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, फिर 23, 24, 29 और 32 भी इंक्लूड होता है इसमें। इतना बड़ा एरिया, इसके कई फंक्शन तो अभी तक साइंटिस्ट को पता ही नहीं है। जो पता है वो ये है, इट फॉर्म द सेंटर फॉर हायर फंक्शन लाइक इमोशंस, लर्निंग, मेमोरी, सोशल बिहेवियर, शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्लियर? सेंटर फॉर प्लान्ड एक्शन है, is the seat of intelligence, very important. It is also called the organ of mind. It is responsible for personality. Clear? Various autonomic changes during emotional condition. यानी जो इमोशंस हैं, मेमोरी है, याददाश्त है, रिकॉलिंग मेमोरी है, प्लानिंग करना किसी चीज की, सब किसका काम है? फ्रंटल लोब का जो सबसे फ्रंट पोर्शन है, जिसको हमने कहा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका काम। What about the parietal lobe? Parietal lobe extends from central sulcus and merges with occipital lobe behind the temporal. इसके behind यानी इसके parietal के पीछे occipital होता है, उसके नीचे temporal होता है। ठीक है। Parietal lobe में कौन से functional area हैं? Somatosensory area 1, somatosensory area 2, somatosensory association area। अब यहाँ देख लें parietal lobe, हमने कहा इसके पीछे होता है occipital, ये below occipital, इसके नीचे होता है ये वाला एरिया, दिस इज टेम्पोरल, इसके फ्रंट पे होता है फ्रंटल। ये जो ग्रीन एरिया है, दिस इज पैराइटल। अब इसमें क्या है? ये 1, 2, 3 वाला, इसको पोस्ट सेंट्रल हमने कहा। ये प्री सेंट्रल होता है, आगे पीछे पोस्ट सेंट्रल होता है गायरस 1, 2, 3। फिर इसके अंदर एरिया 5 भी हमने ये देखा। फिर ये दूसरा 40 एरिया भी है, एंगुलर गायरस 39 भी है। तो ये पूरा एरिया कहलाता है पैराइटल लोब। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है सोमैटोसेंसरी एरिया 1, ये इसको कहते हैं 312 को, जो हमारा सेंसरी एरिया है। यानी समझ इसको, जस्ट आप समझें कि तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन A to Z, आइदर पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, रिप्रोडक्टिव सेंसेशन, ऑल दी सेंसेशन जो हम फील करते हैं, गर्मी सर्दी, वो तमाम अल्टीमेटली सोमैटोसेंसरी एरिया 1 के पास वो मैसेज जाएगा। ये तो ये कहां से इंफॉर्मेशन आती है? थैलेमस से इसके पास आती है।
It is present in the posterior lip of central sulcus in the post-central gyrus. It consists of Brodmann area 312. ये आपने इनका Brodmann नंबर याद करना है आपने, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी का, प्राइमरी मोटर का, सेकेंडरी मोटर का, इनके नंबर आपको याद होने चाहिए, ये कभी आ सकते हैं बेसिक। फंक्शन हमने कैसे देखा, साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि अगर इसको हम निकाल देते हैं एरिया के, तो जो जो फंक्शन लॉस हुआ इसका मतलब फंक्शन इसी ने किया। लाइक एक्सिशन कहते हैं निकालने को, लॉस ऑफ person is unable to localize discretely the different sensation in different part of the body, however he or she can localize these sensation crudely। इसका मकसद मैं आपको समझ, इसका मकसद ये है कि किसी आदमी के हाथ में जो है वो आंखें बंद है, सपोज करें आंखें बंद है, हाथ के अंदर आप जो है लिटिल फिंगर में उसको पिन टच करो, पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तो वो उसको कहें कि कहाँ आपको महसूस हुआ। जिनका ये सोमैटोसेंसरी एरिया नहीं होगा वो कहेंगे कि मेरे लेफ्ट हैंड में कहीं जो है वो पिन, कोई पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट टच हुआ। हैंड का पूरा बताएंगे क्रूडली, ये नहीं बता सकेंगे कि ये फिंगर में कहाँ है, लिटिल में, जबकि अगर ये एरिया ठीक होगा एक्यूरेटली वो बता देगा कि मुझे इस फिंगर में ऐसा प्रॉब्लम है। The person is unable to judge critical degree of pressure against the body। प्रेशर कम हो ज्यादा हो उसको पता ही नहीं चलेगा। आप जोर से किसी को हाथ को दबाते हैं, छोटे बच्चे को, थोड़ी देर के बाद वो चीखता है, उसको दर्द होता है, वो प्रेशर जब बढ़ता जाता है। लेकिन इनमें जो है प्रेशर को फील नहीं कर पाएंगे, कम है ज्यादा है। अनेबल टू जज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट उठाएंगे ये नहीं बता सकते भारी है हल्का है। पर्सन इज अनेबल टू जज शेप और फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड स्टीरियोग्नोसिस। अगर आंखें बंद करके उसको चम्मच दें, गिलास दें, वो नहीं बता सकेगा कि चम्मच है गिलास है, ठीक। पर्सन इज अनेबल टू जज टेक्सचर ऑफ मटेरियल, ये नहीं बता सकेगा चीज जो है वो पानी की तरह नरम है, रुई की तरह नरम है, हार्ड है, स्टोन की तरह, सही बता नहीं सकेंगे, ठीक। तो these abilities will be lost। अब सोमैटोसेंसरी एरिया 2 समझ लें कि ये उसका हेल्पर है, उसके साथ है, 1 के साथ। ये पोस्ट सेंट्रल गायरस के नीचे होता है। फंक्शन क्या है, सोमैटोस्टैटिक एरिया 2 रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द सोमैटोस्टैटिक एरिया 1 एंड फ्रॉम थैलेमस डायरेक्टली। ये डायरेक्टली थैलेमस से इंफॉर्मेशन लेता है और 1 से भी लेता है। द एग्जैक्ट रोल इज नॉट क्लियर बट इट इज थॉट टू बी कंसर्न्ड विद परसेप्शन ऑफ सेंसेशन, यानी परसीव करना, इन सेंसेशन को रिसीव करना, डिटेक्ट करना, फील करना, वो इसका काम है, लेकिन कई फंक्शन इसके स्टिल अननोन है। एसोसिएशन एरिया है उसी सेंसरी के साथ है, तो इसलिए इसका नाम है सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया इज सिचुएटेड पोस्टीरियर टू पोस्ट सेंट्रल गायरस above the auditory cortex and in front of visual cortex। it has 2 areas, area number 5, area number 7। बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझना, इसका नंबर क्या है, एरिया 5, एरिया 7, ठीक। इसका काम क्या है, this association area is concerned with synthesis of various sensation perceived by somatostatic area 1। यानी ये क्या है, जो सेंसेशन उसने परसीव की, जो जो उसको डिटेक्ट करेगा, बताएगा, ये उसको सेंस करेगा। फॉर्म द सेंटर, उसका सेंटर है, समझ ले, फॉर्म द सेंटर फॉर कंबाइंड सेंसेशन लाइक स्टीरियोग्नोसिस। अब टच आया, टेम्परेचर आई इंफॉर्मेशन, और जो है टेक्सचर के बारे में इंफॉर्मेशन आई, सबको कंबाइन करके किसी चीज के बारे में कोई बताना कि चीज ऐसी है, वो प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस, वो भी इसका काम है। अगर वो लॉस हो जाएगी सोमैटोसेंसरी एरिया 2 से भी वो लॉस होगी, इस एसोसिएशन से भी लॉस होगी, उसको हम कहते हैं एस्टीरियोग्नोसिस। टेम्पोरल लोब साइड पे होता है, उसके अंदर फंक्शनल एरिया क्या है, सुनने वाले एरियाज उसके अंदर हैं, और इक्विलिब्रियम का। प्राइमरी जो सुनने वाला एरिया है, जहाँ पे हमारी सुनने की सेंसेशन, कान से जो सुनते हैं वो अल्टीमेटली पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। includes number 1 area 41, number 2 area 42, number 3 वर्निक्स एरिया। 3 एरिया होते हैं ऑडिटरी, प्राइमरी ऑडिटरी, फिर एरिया 41, 42 और वर्निक्स एरिया। फंक्शन ऑफ प्राइमरी ऑडिटरी एरिया क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद, अब सिंपल सी बात है, कान से इंफॉर्मेशन जो सुनने वाली आएगी वो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में आएगी, यानी वो हमें बताएगी बॉडी को, ब्रेन को, कि भाई ये चीज हमने सुनी। is concerned with perception of auditory impulses, analysis of pitch and determination of intensity and source of sound।
ये भी पता है कि साउंड कहाँ से आ रहा है, करीब से आ रहा है, दूर से आ रहा है, राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है। एरिया 41 42 ये साउंड के साथ इसी का एरिया है, वो कंसर्न होता है। अब दूसरा इसके साथ ही एक एरिया, उसका नाम है वर्निक्स एरिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन। जो हमने सुना उसको इंटरप्रीट करना, क्या सुना, कैसे सुना, वो काम है वर्निक्स एरिया का। इट कैरी आउट दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया। वर्निक्स एरिया कैसे करता है, उसके साथ ही एक एरिया होता है सेकेंडरी एरिया नंबर 22। Wernicke area is also responsible for understanding auditory information about any word and sending this information to broadcast area। अब इसको समझें, इसको मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जो हम बात करते हैं उसके लिए मैसेज जिस एरिया से आता है टॉकिंग का, उसका नाम है ब्रोकास्ट एरिया, उसको कहते हैं स्पीच का एरिया। अब सपोज करें एक आदमी बैठा आंखें बंद करके, मैंने उसके कान में बताया ए, और आपने उससे पूछा कि इन्होंने क्या कहा आपको, और वो आपको बता दे ए, तो जो मैंने कहा वो मैसेज उसने आगे फॉरवर्ड किया, जबान से बोला। अब वो जो बात हमने उनको सुनाई उनके कान के थ्रू अल्टीमेटली प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में जाएगी, फिर उसका वर्निक्स एरिया उसको सेंस करेगा कि इन्होंने लफ्ज ए बोला। फिर वर्निक्स एरिया के बाद वो खुद जब बोलेगा उसका ब्रोकास्ट एरिया बेसिकली बोलता है, जिसकी मदद से उसकी जबान बोलती है और जो है लेरिंक्स से बात होती है। समझ रहे हैं? तो लफ्ज को समझना वर्निक्स एरिया का काम है, बोलना ब्रोकास्ट एरिया का काम है। तो अगर उसके वर्निक्स एरिया में डैमेज होगा तो मैं उसको कहूंगा ए, वो शायद ए रिप्लाई ना करे क्योंकि वो समझ ही नहीं सका हमारा मतलब। तो वो बी बोले, सी बोले, 1 2 जो भी बोले वो बोल सकता है क्योंकि उसने समझा ही नहीं। तो अल्फाज को समझना ऑडिटरी सेंसेशन, दैट इज फंक्शन ऑफ वर्निक्स। बोलना फंक्शन ऑफ ब्रोकास्ट। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया ये क्या है, कहाँ होता है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। अब ये गायरस के नाम है, जो एलिवेशन है सरफेस ऑफ कॉर्टेक्स पे, उनके मुख्तलिफ नाम है, जैसे पोस्ट सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल गायरस, ये एक नाम लिख दिया सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑडियो साइकिक एरिया, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ये इसको एरिया नंबर 22 कहते हैं। ये सेकेंडरी होता है। ये क्या करता है, कंसर्न विद इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन अलोंग विद वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया जैसे अल्फाज को समझता है, उसके साथ ही सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया भी उसको समझने में काम करता है और मेमोराइज करता है स्पोकन वर्ड्स को। जो किसी आदमी ने लफ्ज सुने और उनको याद किया तो वो इसका काम है। जैसे आपने लफ्ज सुना, किसी का नाम सुना, वो आपके सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया की मेमोरी में सेव हो जाएगा। Okay, so what we have discussed, we have today discussed most upper and important portion of human brain known as cerebrum. Its outer portion is called as cerebral cortex. We discussed about the cerebral cortex. First, we discussed how many lobes. We discussed one, frontal, parietal, occipital, and temporal lobe. From these three, today we have discussed frontal, parietal, and temporal lobe. Then I told you about the layers of cerebral cortex. There are 6 layers of cerebral cortex. Then we done the frontal lobe. That frontal lobe is separated into two, prefrontal cortex and precentral cortex. Then we done individual areas among these areas and their function. Then we done parietal and temporal lobe. So this was our today's lecture. So thank you so much for today's lecture.